اللهم صل على اللهم صل محمد على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على وصليت على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. وعلى وعلى آل آل محمد محمد دیکھیے پہلے ہے وعلا پھر آلی. وعلى آل محمد وعلى وعلى آل محمد محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى وعلى آل آل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم ربي يسر رب يسر ولا تعسر ولا ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك وبك نستعين يا فتاح. يا فتاح. رب زدني علما رب زدني علما ربي زدني علما. رب زدني علما. طلعت صاحبہ موجود ہے؟ جی آپ کچھ السلام کہنا چاہیں؟ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ایگزام کے لیے جو بات کرنا چاہ رہی تھیں ابھی کر لیں، جی اور جی جو ایکسٹرا آپ کچھ بات کرنا چاہ رہی ہوں تو وہ بھی کر لیں. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ سب کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ اس مہینے کے آخری میں آپ سبھی کے ایگزامس ہوں گے الحمدللہ. تو آپ لوگ تیاری اپنی کر لیں، اور ایسا گھبرانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس جو آپ کو کلاس میں پڑھایا اور پوچھا جاتا ہے ویسے ہی پوچھا اور پڑھایا جائے گا. آرام سے صبر سے جواب دیں، کوئی غلطی جواب دینے میں نہ کریں، جلد بازی میں یا گھبراہٹ میں، ہے نا. بالکل بہت سمپل رہے گا. باہر سے جو علماء حضرات ہیں وہ لیتے ہیں ایگزام، لیکن اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں. وہ بھی بڑے کوآپریٹو ہوتے ہیں، بہت اچھے سے سوال کرتے ہیں اور بہت وقت دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہنٹس بھی دے دیتے ہیں اگر آپ کچھ ایسے غلطی کر رہے ہوتے ہیں میجر. چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ کیئرلیسلی آپ بول رہے ہیں، گھبرا کے بول رہے ہیں، تو وہ وقت دیتے ہیں. تو اس کا ایگزام کا فیئر اپنے دل سے ڈر جو ہے وہ نکال دیں، ہے نا. اب اس کے بعد آپ ناہدہ صاحبہ کو ابھی نام لکھوا دیں فائنل کہ کون کون. ویسے ایگزام تو سبھی کو کمپلسری ہے، کیونکہ اگر ایگزام نہیں دیا تو آپ سب لیول 2 میں نہیں جا پائیں گے، کیونکہ یہ ایگزام عام ایگزام نہیں ہے، یہ ٹیسٹ نہیں ہے، کلاس ٹیسٹ نہیں ہے، یہ ہمارا جو ہے ویسا والا ٹیسٹ نہیں ہے، یہ اینوئل ایگزام ہے. یہ سرٹیفائیڈ ہے، اس میں سرٹیفکیٹ ملے گا، اور اس کے بعد ہی آپ آگے جا سکتے ہیں لیول 2 میں نورانی قاعدہ کے لیے. تو دینا تو سبھی کو ہے، لیکن پھر بھی ایک بار پوچھا جا رہا ہے اس طرح سے، کیونکہ فیس ہے ایگزام کی 500 روپیز. تو آپ سب فیس بھی پے کرنا شروع کر دیں. 17 تاریخ آخری تاریخ ہے، اور ابھی حال
नाम लिखवा दें अपने फाइनल, ताकि नाहिदा साहिबा के पास फाइनल नाम आ जाए। बस सिर्फ नाम अपने पूरे पूरे 5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। सभी एग्जाम जो जुड़े हैं सभी एग्जाम देंगे ना इंशाल्लाह। जी जी अपी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप सब अपना नाम एक बार फाइनली लिखवा दें ना। जी अपी लेवल 2 के पैसे भी अगर हम साथ में ही कर दें तो, या फिर उसी मतलब ग्रुप पर करें? नहीं नहीं, वो तो क्यूआर तो देखिए एक ही है, आप पूरे जी कर दें, उसमें मेंशन भी कर दें और ग्रुप्स में मेंशन कर दें कि हमने इसके पे कर रहे हैं, और क्यूआर जरूर से इसका स्क्रीनशॉट लेके उन उन ग्रुप्स में जी भेज दें। जैसे मान लिया आप लेवल 1 लेवल 2 सुनना इंग्लिश 4 एग्जाम दे रहे हैं, तो आप चारों जी ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजिए, तो स्क्रीनशॉट में अलग और लिखिए कि ये 4 एग्जाम की हमने फी पे करी है, तो वो चारों जी टीचर्स के पास रिकॉर्ड आ जाएगा, है जी ना जी आपका, जी इस जी तरह से, जी ठीक है। जी और जी कोशिश अपी करें कि जल्दी से जल्दी कर दें पे, और नाम जी लिखवा जी दें, ताकि हम लोग भी आगे अपनी तैयारियां शुरू करें। और सिलेबस भी आपको आज इंशाल्लाह आज कल में मिल जाएगा, और सिलेबस वही है जो जी आपको पढ़ाया जा रहा है। जी अपी फिर भी आपको जी फॉर्मेलिटी के लिए एक पेपर पे मिल जाएगा इंशाल्लाह। जी जी अपी एग्जाम कब तक होंगे? एग्जाम इस महीने के इंशाल्लाह आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे, 28 से आप मान के चलें। तो जैसे बहुत जी सारी अदर अदर क्लासेस हैं, तो आपका भी 28 से 30 के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा, जी ठीक है। जी क्योंकि जी क्या है कि जो उलमा हजरात होते हैं जो एग्जाम लेते हैं उनसे टाइम लेना होता है ना, तो उस जी वजह से जी थोड़ा सा अपन इतनी बहुत पहले से कंफर्म नहीं करते। तो आप यूं मान जी के चलें अपी कि आपकी 28 से 30 के बीच में एग्जाम है, तो आप 27 तारीख तक अपनी पूरी मुकम्मल तैयारी रखें, जी इस तरह जी से, अपी ठीक है। जी अपी जी एक अपी दिन एक ही में दो दिन एग्जाम रहेगा भी हो एग्जाम? सकते हैं क्या? जी एक दिन में 2 एग्जाम ले सकते हैं क्या? जी, अगर जैसे आपका एक दिन में 2 एग्जाम पढ़ रहे हैं, है ना, आपके आ रहे हैं जी कि जैसे आपने लेवल 1 भी दिया, अब लेवल 2 का भी आपको आज ही की डेट है आपकी, तो आप जी दे अपी सकते हैं। मेरे 4 सब्जेक्ट हो रहे हैं, लेवल 1 लेवल 2 और सुन्ना क्लास और तफसीर। हाँ, तो आप दे सकती हैं ना, बल्कि दे सकती नहीं, आपको देना ही होगा, क्योंकि जैसी डेट्स जी आएंगी अपी वैसे मैं ही तो करना दूंगी होगा, इंशाल्लाह। है ना इंशाल्लाह। जी तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। मैंने क्या कहा, 27 तक आप लोग अपनी पूरी कंप्लीट तैयारी रखिए, और आप लोग तो जी माशाल्लाह सब एक्टिव हैं, सब पढ़ ही रहे हैं, तो ऐसा कोई खास ऐसा कोई जी अलग से कुछ याद करने की ऐसी जरूरत तो है नहीं, सब कुछ अपनी पता है, जी जो याद करा है बस उसी को अच्छे से वो कर लें। जी तो क्लास में रिवाइज लगातार आपके करिए। रिविजन्स हो रहे हैं, क्लास में आपके जी लगातार आपसे पूछा ही जा रहा है, तो वैसे ही सब कुछ होगा, कुछ ऐसा अलग नहीं होगा कि उसमें आप इतने टेंशन लें इंशाल्लाह, है ना। अपनी बीच जी हम्म हमने बीच में ज्वाइन किया था, तो मतलब प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है कि। आप कौन बोल रही हैं? गुफराना साहिबा? नहीं, आप आफरीन रफी अर्शी साहब? अर्शी अच्छा, अर्शी साहिबा बोल रही हैं। तो जी। आपने आपका मखारिज तो पूरे हो गए ना? हाँ, बीच में से मतलब स्टार्ट करे थे। नहीं, लेकिन और बीच में से स्टार्ट करे थे, पर मखारिज तो आपके पूरे कवर हो गए ना क्लास में? जी, तो मतलब कि और कभी देखिए छूट ऐसा भी है कि गई है। अभी वक्त है हमारे पास, तो हम अभी बीच में रिवीजन कर सकते हैं। जिसको भी जो हाँ, डाउट हो परेशानी है वो हम कर सकते हैं पूछ मुकम्मल, सकते है हैं। ना। और देखिए अर्शी साहिबा, क्या है कि मखारिज जी तो आपके पूरे कंप्लीट हो गए, अब आपको उसको याद करना, उसकी प्रैक्टिस करना तो सब आपके ऊपर है ना। आपने लेट जी ज्वाइन करा जी माना, लेकिन आपका कोर्स तो कंप्लीट हो गया है ना, और क्लास भी चली रही है, और आप अपना होमवर्क करते। और हाँ, जरूरी एक बात, अब आपको होमवर्क ऐसा है कि होमवर्क जो जो मिलेगा वो करना ही है, ठीक है। उसके अलावा जी आप अपनी प्रैक्टिस के वीडियो वो ऑडियोज भी डाल सकते हैं, डिस्कशंस आप कर सकते हैं, एक दूसरे को भी सुना सकते हैं, एक दूसरे की गलती कि हमने ये डाला है कोई चेक कर ले। तो अगर टीचर को टाइम हुआ तो वो चेक करेंगी, नहीं तो आपस में एक दूसरे का चेक करके अपनी गलतियां एक दूसरे की भी बताई जा सकती हैं, है ना, जो जितना जिसको जी समझ में आए। तो क्योंकि एग्जाम के टाइम अमूमन ये चीज चलती है कि ग्रुप्स में स्टूडेंट्स आपस में जो है वो रिवीजन करते हैं और एक दूसरे की गलतियां बताते हैं, ठीक है। जैसे ग्रुप जी स्टडीज करते थे ना अपन स्कूल कॉलेजेस जी में, जी एक दूसरे के घर चले गए या ऐसे करके कर जी रहे हैं, वैसे उस तरह से समझे, ठीक है इंशाल्लाह। जी ठीक, जी जी जज़ाकल्लाह। तो मैं है ना नाम बोलूंगी। जिनको एग्जाम देना है तो वो यस कह दें उसके ऊपर, है ना। जी बोलूं अपी मैं? जी अपी रहमत बोल नूर साहिबा, नूर साहिबा नहीं है मौजूद। चलिए एक बार लास्ट में और करूंगी मैं। युसरा खान,
امرین متین صاحبہ، السلام علیکم جی میرا لکھ وعلیکم دیجیے. السلام. ایگزام دیں گی آپ؟ اس لیے جی میں جی ہاں اس لیے میں ہے نا آپ سے پوچھ بھی رہی ہوں، اٹینڈنس کی وجہ. آفرین اظہر صاحبہ. جی اپی دیں گی. جی. اشرا منصوری. اشرا صاحبہ. اشرا صاحبہ موجود ہے؟ نہیں ہے، لیکن ان کا شاید آ گیا ہے، انہوں نے نام تو دیا ہے. اور صدف صاحبہ یہ تو ہے ہی نہیں. صدف خان. صدف کلیم. حمیرہ سید، آپ کا بھی نام آ گیا ہے نا، آپ نے دیے ہے نا نام. حمیرہ سید. حمیرہ سید. حمیرہ صاحبہ موجود نہیں ہے؟ نہیں ہے حمیرہ صاحبہ موجود. چلیے آگے ہے گلناز. گلناز صاحبہ. صبا فاطمہ یہ بھی نہیں ہے. رقیہ منصوری. رقیہ صاحبہ. ناہدہ صاحبہ آپ تو یوں کریے، یہ تو ایسے تو بہت سارے نام آ جائیں گے، یہ لوگ خود ہی اپنا اپنا نام دے دیں گی تو وہ لکھ لے گی، کیونکہ جو اچھا لوگ بہت آپ کم ایسا لوگ ہیں. کریں کہ آپ ہاں خود بول دیں جن جن کو ایگزام دینا ہے نام. جی اپی. جی جی اپی روبینہ اشفاق. جی روبینہ صاحبہ. جی اور جی السلام علیکم آفرین لطیف. آفرین لطیف. جی 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 اور بتائیں، اور کون دے گا ایگزام؟ ہم بھی دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام بتائیں. روحی خان. روحی جوہی خان. جی جی جی. اور مہنا صاحبہ آپ؟ مائک کھلا ہے لیکن آواز. اور بتائیں. عشرت منصوری اپی السلام علیکم. ہم بھی دیں گے. عشرت. جی آپ دیں گی عشرت صاحبہ. جی اپی. جی جی جی. اور بتائیں، جلدی جلدی بتائیں. آفرین اظہر. آفرین اظہر. جی جی آپ کا بھی اس میں سے میں نے نام آپ کا آ گیا ہے. اور بتائیں، جلدی جلدی بتا دیں پھر ہم پڑھائی شروع کریں. عروج صاحب. جی جی عروج صاحبہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ نے نام نہیں دیا ہے. عروج ذیشان. جی ہو گیا آپ کا. اور بتائیں. یہ جو نفیسہ صاحبہ کے نام سے ہیں ایڈ، کیا نام ہے؟ سمیرہ. امیرہ کیا نام ہے ان کا؟ آپ سمیرہ اپی. سمیرہ. حمیرہ. نہیں امیرہ. اپی سمیرہ نام ہے ان کا. سمیرہ. جی جی سمیرہ. بتائیے آپ سمیرہ صاحبہ ایگزام دیں گی آپ؟ اچھا اور جو خود سے بتا دیں جن کو دینا ہے ایگزام دینا ہے، جن کو، وہ اپنا نام جلدی جلدی بتا دیں تاکہ ہم پڑھائی شروع کریں. یہ خدیجہ ذیشان کون ہے؟ یہ جو جڑی ہیں خدیجہ ذیشان. جی وہ میں نے ہی جوائن کرا ہے عروج. اچھا اچھا. اور بتائیں. اور سب کا ہو گیا. انیسہ صاحبہ. جی ہم نے بھی بولا تھا نا ابھی. جی جی وہ آواز کٹ رہی تھی تو سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تو بولیے سب لوگ ہے نا. جی جی بولا تھا نا ہم نے. جی جی. اور کسی کو اپنا نام دینا ہے ایگزام کے لیے؟ اپی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپی غفرانہ آپ لکھ جی لیجئے جی نام. جی 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 جی.
اور بتائیں. बस यही मतलब एग्जाम में यही सब आएगा ना, मखरज जितने पढ़े हैं बस वही जो आएंगे ना. जो हमने पढ़ा है ना जी, मखरज, मखरज जो जो हुर्फ हैं, अलिफ बा ता सा, इनको कहते हैं हुर्फ, और जो निकालने की जगह है उसको कहते हैं मखरज. तो वो सीखना है कहाँ से निकालने हैं. और जो हुर्फों से मिलके जो अल्फाज बनता है उसमें से बीच में से कोई सवाल आ सकता है कि ता में क्या फर्क है, और दाल, मतलब ये हुर्फों को, तौ को कैसे पढ़ना है हमें, वो अल्फाज पूछे जाएंगे. जैसे मैं अभी आपको सूरा में पढ़ाती हूँ ना, कि ये आप ध्यान रखें कि ये अल्फाज पूरा त्वयिरन, त्वयिरन, जैसे हम मखरज के हिसाब से याद करेंगे त्वयिरन, तो हमारे हमारे बोलने का अंदाज त्वयिरन ही होगा. अगर हमने उसे तैरन पढ़ा तो जब वो हमसे पूछेंगे कि तैरन में क्या है, तो आप तैरन ही पढ़ेंगे तो ता बताएंगे. अगर आप तोइरन पढ़ेंगे तो आप तो बताएंगे कि ये तो से शुरू हो रहा है, ता हुर्फ से, इसका मखरज ये है, और ये तो से शुरू हो रहा है. अगर आपने उसे तैरन कह दिए तो आप ता बताएंगे, तो गलत हो जाएगा, है ना. और भी ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, जो अभी अपन रिवीजन करेंगे तो थोड़ा और उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे. आज की क्लास में, आज और कल की क्लास में हमारा पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह मुकम्मल. तो देख लें, अभी किसी को बीच में से याद आ जाए तो बता देना नाम एग्जाम के लिए, है ना. तो हमारे कहाँ तक सूरा हो गई थी, याद है कुछ? अभी आप सुमेरा साहिबा से एक बार और पूछ लीजिए, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ बोला नहीं था एग्जाम जी के जी लिए, मैं तो आप एक बार उनसे और पूछ कर कंफर्म कर लीजिएगा जी, जी क्योंकि मैं उनकी बोल आवाज रही हूँ नहीं ना आई थी, कि माइक बंद है उनका. जी जी. तो बता दें जिनको भी, अभी अभी एक आध बार और लास्ट में बात कर लेंगे हम, अगर किसी का माइक खुला नहीं हो तो. वैसे भी आप बीच में भी, अभी क्लास के बीच में भी बता सकते हैं जब भी. सुमेरा साहिबा आप मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आप एग्जाम देंगी? देना नहीं अभी चाहिए नहीं, वैसे. क्यों? नहीं अभी नहीं देखना. अच्छा देखिए, आप अभी देख लें, आप तो देना तो चाहिए, बाकी आपका लेवल बढ़ जाएगा आगे अगर आप एग्जाम देंगी. तो अभी जी तैयारी के लिए हमारे पास वक्त है, अगर कोशिश करेंगी तो हो जाएगा इंशाल्लाह. देख लें, आप बता देना आज से ना. जी. अब भी हमारा और लिख लीजिए। आप नाम अर्शी बताएं. खान। जी जी, अर्शी साहिबा. कौन साहिबा बात कर रही है? नाहिदा साहिबा जो कह रही है एग्जाम नहीं देंगी? जी सुमेरा साहिबा है, नफीसा के नाम से जुड़ी थी ये, इनकी अम्मी का है शायद ये नाम, तो वो उनका नाम सुमेरा है. अच्छा अच्छा. तो सुमेरा साहिबा कोशिश कर लें आप, क्योंकि फिर आपको नेक्स्ट, जब नेक्स्ट सेशन रमजानों के बाद शुरू होगा तो फिर से आपको लेवल 1 में ही एडमिशन लेना पड़ेगा. लेवल 2 में नहीं दिया जाएगा आपको एडमिशन, क्योंकि आपके पास लेवल 1 का सर्टिफिकेट नहीं होगा. तो इस बेस पे आप डिसाइड कर लें. आप बहुत नई हैं, मैंने मान लिया, समझ लिया, लेकिन कोशिश करें. आप थोड़ा बहुत अगर देना चाहें तो दे सकती हैं, तो आप लेवल 2 में बढ़ जाएंगी. फिर आप लेवल 1 लेवल 2 साथ कर सकती हैं. नहीं तो फिर आपको फिर से नए सेशन में लेवल 1 ही करना पड़ेगा. अब भी लेवल 2 कब तक स्टार्ट होगा? नहीं, लेवल 2 तो लेवल 1 लेवल 2 सब साथ स्टार्ट हो जाते हैं. अब जैसे अभी नहीं मतलब कौन से एग्जाम होगा मंथ में दिसंबर होगा में. एटलीस्ट? देखिए, दिसंबर जी में एग्जाम होंगे, जनवरी में जलसा होगा, फिर फरवरी में रमजान शुरू हो जाएंगी. तो रमजान की स्पेशल क्लास लगती है अप्पी की, पूरा कुरान तजवीद से कंप्लीट कराती हैं वो. तो जी वो लगेगा. फिर ईद की छुट्टियां हो जाएंगी, फिर ईद के बाद न्यू सेशन स्टार्ट होता है हमारा. ठीक है, तो न्यू सेशन जब स्टार्ट होता है तो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 सारी क्लासेस एक साथ लग जाएंगी. तो जो लेवल जी 1 कर चुके होंगे, जो आप लोग का बैच है ना, वो लेवल 2 से स्टार्ट होगा, लेवल 2 में एडमिशन लेगा और जाएगा. जिसे लेवल 1 रिपीट करना है साइड बाय साइड, तो वो लेवल 1 भी रिपीट कर लेगा, और लेवल 2 में तो जाएगा ही, क्योंकि उसके पास लेवल 1 का सर्टिफिकेट आ चुका होगा. इसमें कोई तो पास फेल नहीं होता. वो तो ठीक है अप्पी, मगर अभी ज्वाइंट हुए हैं हम, इसीलिए एक ही हफ्ता ठीक है, हुआ देख है. लें. एक जी ही जी. हफ्ता हुआ है, ठीक है. चलिए कोशिश कर ले, हिम्मत हो तो दे दे, नहीं तो कोई बात नहीं. मैं आपको समझा रही थी कि आप फिर आपको नेक्स्ट सेशन में फिर से लेवल 1 ही दिया जाएगा, इस वजह से, है ना. ये लेवल 2 अप्रैल में तो नहीं होगा क्योंकि हमें थोड़ा सा जाना है बाहर? नहीं नहीं, मैंने आपसे कहा ना 7 में ही शुरू हो जाएगा. लेवल 1 तो होगा रमजान ईद के बाद. तो ईद कब है अपनी? मार्च में. तो मार्च मार्च में में। क्या
एंड में ऐसे स्टार्ट इंशाल्लाह होने के चांस हैं पूरे। अप्रैल में, क्योंकि हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो वो फिर 3 महीने का कोर्स होके फिर से स्टार्ट होता है लेवल 2 लेवल 1 सब 3 महीने के कोर्सेज होते हैं, फिर से स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह, है ना। अगर कोई चेंजेस नहीं रखे गए क्लासेस में तो ठीक है, जी। आप देख लीजिए। बस इनके अलावा और कोई तो ऐसा नहीं है जो क्लास में भी जुड़ा है लेकिन एग्जाम नहीं देगा? और कोई तो नहीं है ना ऐसा, नाहिदा साहबा? जी बताएं, सब आवाज आ रही है तलत साहिबा की? आपने कितने नाम लिखे हैं नाहिदा साहबा अभी? हमारे तो काफी हो गए, 1 2 3 4 काउंटिंग है? 8 9 10 11 17 हैं, 17 नाम आ गए हैं। 17 आ गए तो 17 तो अपन है ही टोटल, अपन दोनों को अभी है, मिलाकर 17। अभी है 17 जी। वैसे माशाल्लाह काफी लोग हैं। मेहनाज साहिबा ने अपना नाम नहीं दिया। नहीं, मतलब कहने का है कि क्लास में अभी 17 स्टूडेंट तो है नहीं, क्योंकि एक आप हैं एक मैं हूँ। जी जी, पूरे आए नहीं हैं आज शायद। तो जी जी, स्टूडेंट 15 हैं तो नाम बल्कि 17 कैसे आए? ये आपके वो जो उस पे ग्रुप पर जो दिए हैं ना नाम, उसमें नहीं, से भी अभी क्लास में जो लिखवाए ना जिन लोगों ने नाम, वो कितने लिखे हैं आपने? अभी तो मेरे पास जो आपको मैं अटेंडेंस भेजती हूँ ना, उसमें मैंने टिक कर लिए हैं नाम। तो वो पहले से भी जो उसमें आपने भेजे थे ना, तो उसमें से भी मैंने टिक कर लिए थे, फिर मैंने कहा लिख अच्छा कर अच्छा, आपको। तो आप सभी ने नाम लिखवाया है ना लेवल 1 के एग्जाम के लिए, जितने 15 लोग आप यहाँ जुड़े हैं? जी अमरीन अपी। साहिबा, महनाज फातिमा, जी अपी। जीनी खान, आफरीन अजहर जी अपी। और महनाज फातिमा, नफीसा साहिबा को मेहनाज छोड़ के साहिबा, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान, अर्शी खान, गफराना खान, खतीजा आवाज आ जीशान, रही है? रहमत, रुकैया मंसूरी, आप सब जो जुड़े हैं या 15, आपने सबने लिखवाया है? किसने नहीं लिखवाया नफीसा साहिबा को छोड़ के, और किसने नाम नहीं लिखवाया? देखिए कोई जी कुछ कह रहा है जी जिन्हें, हाँ अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वालेकुम जी मैं अस्सलाम। सफ़िया अख्तार बोल रही हूँ। जी मैं नहीं दूंगी अच्छा एग्जाम। अच्छा, मैं आप 2 तो, बार माशाल्लाह दे चुकी, मैं तो लेवल 4 में हूँ ना। हाँ आप मैं तो तो लेवल मखारिज 3 सही में हैं। करने के लिए, ठीक है जी ठीक है 4 में, ठीक। 4 आप में हूँ लेवल, मैं। जी लेवल जी 4 में, मखारिज ठीक है। सही करने के लिए मैंने अटेंड की है क्लास। ठीक है, अगर जी देना चाहें तो आप दे सकती हैं वैसे, है ना, कोई वो नहीं है। लेकिन ठीक है, आप तो काफी पुरानी, काफी बार एग्जाम्स हो चुके हैं आपके। जी और जी कोई इनके अलावा? बाकी सब दे रहे हैं ना लेवल 1 का एग्जाम? जी अपी। ठीक है, चलिए अब क्लास कर लीजिए आपकी स्टार्ट। जी जी, चलिए। हम लोग कितनी सूरा हो गई थी हमारी? ये हमारी प्यार आई जब पढ़ाई थी आपने, सूर्य सूरह माउन माउन। पढ़ाई थी। हाँ हो गई थी सूर्य बाउन। जी जी सूर्य अपी। माउन हो गई। देखिए है ना, अब हमारी ये समझो आज हम पूरा मुकम्मल कर लेंगे। सूर्य माउन तक हो गई थी, अच्छे से समझ में आ गई थी आपके? जी जी जी। अपी। तो मैं ये कह रही थी कि आप लोग जो सबक डालते हैं ना, तो वो जितना हमने पढ़ाया होता है पूरा पूरा नहीं डाला करें। प्रैक्टिस पूरे की करा करें, थोड़ा सा डाला करें। बहुत वक्त लग जाता है सबक चेक करने में। तो या फिर दो 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 एक बार में करके डाल दिए करें, एक दिन में एक थोड़ा सा डाल दें फिर अलग से डाल दें। तो वो अब क्या, वैसे भी अब लास्ट लास्ट क्लास है, मगर आप जो बताए हैं ना आपको तलत साहिबा ने, कि ग्रुप में डिस्कशन करा करें आपस में, कि आप हमारा सुन लें, एक दूसरे को सुनाएं और एक दूसरे की गलतियां बताएं। और यहाँ पे मैं चेक कर लूंगी, अगर गलत होगा कुछ तो मैं बता दिया करूंगी। इससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप एग्जाम देने में घबराएंगे नहीं, है ना। तो कुछ जी पढ़ के अपी। डाल दें और आप बोल भी दें कि मेरा ये चेक कर लें कैसा है, ये पढ़ा है अच्छा, आपस में एक दूसरे से कहें। जैसे हुमेरा साहिबा माशाल्लाह काफी हद तक बेहतर हैं वो, उनको उनसे पूछ लें कि हमारा ये सही है बता दें। और कोई चाहे तो वो किसी और का नाम लेके ये कह दें कि ये मेरा चेक कर लें। नाम ना भी लें तो बस ये कहें कि ये चेक कर लें, कोई भी चेक कर सकता है एक दूसरे का। अगर उसमें कोई गलती होगी तो हम लोग बैठे हैं देखने के लिए। तो आप आपस में एक दूसरे से बात करें ग्रुप पर, है ना। पहले जो जी अपी। हम लोग स्टूडेंट थे ना, तो वो आपस में ऐसे ही डिस्कस करते थे एक दूसरे से। तो काफी बेहतरी आती है इससे, है ना। जी
आप समझ गए? मैं समझा नहीं पा रही शायद आप लोगों को। जी अपनी नहीं, जी समझ में आ नहीं गया। अब भी समझ गए अल्हम्दुलिल्लाह जी आप क्या अपनी कहना चाह रही हैं। जी जी जी। अब समझ जैसे गए अभी तलत साहिबा माशाल्लाह वो बहुत अच्छा जी बोल अब भी लेती हैं, वो समझा नहीं देती अब हैं भी तो आप भी अच्छा बोलती हैं ऐसी जी बात नहीं है। तो मुझे भी उनकी बात अच्छी जल्दी समझ में आ जाती है, क्योंकि वो पूरे मतलब पूरे उसके साथ बताती हैं, लॉजिक एक्सप्लेन के कर साथ देती हैं अच्छे से। एक्सप्लेन अच्छा कर देती हैं वो, तो जी समझ में आ जाता है। तो थोड़ा मेरे पास उस चीज की कमी है कि मैं नहीं, आप भी अच्छे से ही नहीं बताती अपनी हैं, आप भी समझते बहुत हैं हम अच्छे लोग। से समझाती हैं, समझ में आ जाता है हम लोगों के। जी। में हम उनको ठीक कर लेंगे, और उसके बाद वाले हफ्ते में इंशाल्लाह हम टेस्ट जी नहीं कुछ नहीं कर रही। जी तलत साहिबा मौजूद है आप? जी ये कितना सूरा भेजी थी आपने? पूरी 10 सूरा है ना इसमें, नहीं? ये जो पीडीएफ में चला रही हूँ इसमें नहीं आ रहा है। रोकिए एक मिनट, ये कौन सी आपको आप कौन सी चाहिए? ये जो पूरी 11 सूरा है ना, लास्ट वाली 2 बची हैं बस। सूर्य फलक और सूर्य नास। नहीं नहीं, सूर्य फील और सूर्य माऊन। अच्छा हाँ, लास्ट की तो बची। नहीं नहीं, कहाँ से पढ़ी थी हमने? सूर्य कुल सूर्य स्टार्टिंग से ही पढ़ाई है ना आपने, शुरू अलम से तक पढ़ाई से। थी, हाँ शुरू से पढ़ाई है। लास्ट वाली 2 बची हैं, माऊन तक चले गए हैं हम। और इन वो कौसर तक हो गई थी, सूर्य कौसर तक हो गई थी। फिर सूर्य ट्यूसडे को मैं काफिलून होगा। नहीं नहीं, ट्यूसडे
क्लास नहीं ली थी तो पता नहीं है कि 2 सूरतें आपने पढ़ाई थी हाँ कि नहीं हाँ पढ़ाई थी। हाँ 2 सूरह हो गई थी, माऊन तक हो गई थी। तो वो आप वाली पीडीएफ कर दें, अगर आपकी ही डाली है मैंने जो आपने भेजी थी, तो लेकिन सूर्य मुझे माउन के बाद क्या आ रहा है हाँ इसमें, आगे बढ़ाइए। एक सेकंड, ये कुल ये सूर्य काफिरून आ रही है मेरे इसके बाद। सूर्य हाँ काफिरून हो गई अपी। हो गई हाँ हो अपी। रही है। लास्ट में भी वही सब आ रही हैं, कुलिया ये कुल औज़ु बिरब्बिन नास। अपी ये सूर्य नहीं नस्र हुई। भी हो गई। एक नाहिदा सेकंड, साहिबा, आपने कहाँ तक पढ़ा दिया है? हमने माऊन तक पढ़ा दिया है। नहीं, सूरह नस्र तक हो गई है। नस्र तक आगे हो अपी। गई। ये आ गई, एक सेकंड रुके, आप मेरी बात सुने। जो ये जो कुरैश हो गया ना, हाँ आगे ये आ बढ़ाती गई। रहिए, आप एक एक करके हाँ आगे बढ़ाइए। कुरैश हो गई, हाँ हाँ, बस बस ठीक आ है। गई। सूर्य माउन हो गई, जी। जी जी। अब ठीक है। देखिए, जो जो पाबंदी से क्लास लेते हैं वो बताएं कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। अपी सूर्य मन, नस्र तक, कि सूर्य नस्र सूर्य तक हो गई है। माउन और सूर्य नस्र तक हो गई है। जी हाँ अपी। तो आगे करिए, आगे करिए, इसके आगे, माउन के आगे। एक सेकंड, ये सूर्य काफिरून आई, ये सूर्य नस्र सूर्य आई। अब आगे सूर्य करिए, और आगे करिए। सूर्य लहब। हाँ वो शुरू का आ रहे हैं, शुरू की सूरह सूर्य आ रही हैं। नस्र के बाद ये आ गई ना सूर्य फलक। नहीं, सूर्य सूरह लहब नहीं आई। सूर्य लहब, सूर्य जी लहब है। आ गई। हाँ। जी तो बात तो सुने। जी हमने जो शुरू करी थी, हम जो पढ़ रहे हैं ना उनसे कह रहे हैं हमने। अच्छा, जो आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपने कहाँ से शुरू करी थी ये बताएं आप। अपी अलहम्दो से, अपी। है सूर्य ना, फातिहा से। शुरू से सूर्य जी फातिहा से हम इधर आ रहे हैं ना, इस तरफ आ रहे हैं, तो हम अभी जी ये सब तो पढ़ी, हमारी हो गई। फिर सूरह कुरैश पढ़ी थी, फिर सूरह माउन पढ़ी थी, फिर सूरह ये पढ़ी थी कौसर, और उसके जी बाद सूरह काफिरून और सूरह नस्र। नस्र। हाँ जी सूर्य जी जी, नस्र तब तक हो ये गई। में नहीं हुई अभी। जी हाँ, ये नहीं जी हुई, सूर्य अब लहब नहीं हुई। सूर्य जी लहब नहीं हुई 3 अपी सूरतें अभी। रह गई हैं अपी अपनी बस। चलिए, बाकी यही बची है ना। तो जी हम जी ऐसा 3। करेंगे कि 2 सूरह आज पढ़ लेंगे और 2 सूरह हम कल। 2 या 3 सूरह हम कल कर लेंगे। सूर्य जी लहब और सूर्य सूर्य इखलास, सूर्य ये हम अखलाक। कोशिश करते हैं 2 आज कर लें और 2 कल की क्लास में करके मुकम्मल हमारा कोर्स हो जाएगा, है ना। जी जी उसके बाद फिर हम एक हफ्ते में हम जो 2 क्लासें होंगी अगले हफ्ते, तो इंशाल्लाह हम उसमें रिवीजन रखेंगे एक बार। जी उसके बाद वाला जो लास्ट बचेगा तो फिर हम उसमें टेस्ट लेंगे। तो अभी से आप तैयारी शुरू कर देंगे टेस्ट के लिए। जी टेस्ट के लिए तैयारी ऐसे करेंगे कि आप जो सबक भेज रहे हैं वो तो आप भेजेंगे, लेकिन आपस में डिस्कशन जैसे बताया तलत साहब ने ना, वो भी करना है साथ में। तो जो आपके डाउट होंगे, गलतियां होंगी, वो आपकी आप एक दूसरे की सही करना, तो उससे पता चलेगा कि किसको सही समझ में आया है और किसको नहीं समझ में आया है ना। तो वो ना, भी पता जी चल। अपी। जी नाहिदा साहब, जो नेक्स्ट वीक होगा ना 22-23 तारीख का, वो लास्ट रहेगा, क्योंकि उसके हाँ बाद तो कोई बस क्लास नहीं लगेगी। हाँ तो क्योंकि बस जब भी उसके बाद हम फिर टेस्ट 29-30 लेंगे। है तो एग्जाम्स हो जाएंगे। तो बस 22-23 बस दोनों आप टेस्ट ले लीजिए इन लोगों का। आप लोग अभी से बता दिया है, प्रिपेयर हाँ रहिएगा। सारे मखारिज और सारे 10-11 सूरतें सब तैयार करके आइएगा। बिना देखे आपसे सूरत में से सिर्फ ये पूछा जाएगा कि तब्बत यदा में क्या आ रहा है, दाल आ रहा है या ता आ रहा है, या उस जो सिमिलर मखरज है वो पूछे जाएंगे ज्यादातर, है ना। तो जी इसका आपको वो करके आना है, और अदायगी भी सही करके आनी है कि आप उसको सही से अदा करें। बस इतना हम्म करना है। और मखारिज की डेफिनेशन तो ये सब आप अभी से बता दिए। अभी से आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर ले। दोनों दिन टेस्ट चलेंगे, रिवीजन टेस्ट, है ना। और जी उसके बाद आपका एग्जाम होगा इंशाल्लाह। जी अपी। हाँ, और बाकी आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज हो कि समझ में नहीं आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं ना। क्लास में जी भी पूछ सकते हैं, ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं पढ़ाई के बारे में। जी चलिए, अऊज़ु 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 बिल्लाहि बिल्लाह बिल्लाहि
من الشيطان من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم اب ہم پڑھیں گے تبت یدا تبت يدا تبت یدا تبت يدا ابی لہب أبي لهب ہابیوں نہیں ہبیوں ابی لہب أبي لهب ابی لہب أبي لهب وتب وتب ما اغنا ما أغنى اب یہ دیکھیں کہ اس میں کون کون سے ایسے لفظ ہیں جو آپ سے ادا ہونے میں مشکل ہوگی. جیسے ہم نے پڑھ لیا ابھی لہابی کوئی پڑھ رہا تھا نا تو اسے ہمیں کھینچنا نہیں ہے، جلدی پڑھنا ہے نا. وما کسب یہ بھی آسانی سے ہو جائے گا. وما کسب جی ہاں کہیں وما کسب. وما جن لوگوں سے قاف اور قاف ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ والا حرف کوشش کریں زیادہ. وما کسب ہاں کسب سیصلا سيصلى یہ مخارج کے ساتھ ہم لفظوں کو ادا کریں گے نا تو آپ کو بتانے میں آسانی رہے گی. آپ سیصلہ کہیں گے تو سین بتائیں گے آپ مخارج. اگر وہ پوچھیں گے سیصلہ آپ کہیں گے یہ کیا ہے، سیصلہ ہے. آپ اگر یاد کر رہے ہیں سیصلہ تو آپ سیصلہ ہی کہیں گے اور مخارج سین یا سا بتائیں گے. اگر آپ یاد کرنے میں سیصلہ ایسے پڑھیں گے نا تو آپ سواد ہی بتائیں گے. جب آپ خود پڑھ کے دیکھیں گے سیصلہ پہلے سین آ رہا ہے پھر یا آ رہا ہے اور پھر سواد آ رہا ہے نا. سیصلہ سا یا کو نارمل جیسے ادا ہوتا ہے سا یا آسانی سے ہو رہا ہے تو اس کو ویسے ہی ادا کریں. پھر سواد میں تھوڑا سا سیاس ایسے سوالین ٹائپ کا جو سواد ہے ایسی آواز آئے گی. سیصلہ سا کو موٹا نہیں کریں، سا کو سا کی طرح بولیں. سیصلہ کیونکہ سواد بولنے کے چکر میں آپ سین کو بھی ایسے سویا ایسے کر رہے ہیں. سا کو ایسے بولے سا سرسراہٹ ہوتی ہے اس میں. سیصلہ 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 نارا ذات ذات میں کون سا حرف آ رہا ہے؟ زال زال آ رہا ہے. اس کا مخرج پتہ ہے؟ جی ہاں بتائیں. زبان کی نوک کو اوپر کے دو دانتوں کے میں لگا زیادہ ہوتا ہے. ہاں ایسے سوال ہو سکتے ہیں. میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ایسا سوال ہو سکتا ہے. لہب 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 اس میں کون سا ہار ہے؟ چھوٹی ہاں چھوٹی آ رہی ہے اچھا اس کا مخرج بتائیں. ہاں ایسے جیسے میں سوال کر رہی ہوں آپ کا ایگزام میں ایسے سوال آ سکتے ہیں ہے نا. جی وامرأتہ
अगर आप आयत कर रहे हैं तो वम्रअतुह ऐसे, वम्रअतुह। अच्छा, हम्मालतल हतब। अच्छा, इसमें 2 बार हा आ रहा है, कौन सा हा आ रहा है? बड़ी है बड़ी हाँ रही है, हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होती है बड़ी हाँ। माशाल्लाह। ये इस सवाल जो मैं पूछूं ना, उसको ध्यान में रखना है आपको कि ऐसे सवाल हो सकते हैं। हम्मालतल हतब। हब्लुम मिन मसद। अच्छा, मैं पूछूंगी आपसे कि जो हमें पढ़ा रही हूँ, हब्लुम मिन मसद, इसमें कौन सा हुर्फ है जो 2 बार आ रहा है? मीम। हाँ, मीम आ रहा है। इसका मखरज क्या है? मीम हलक के नहीं, जुबान होठों के सूखे हिस्से से मीम अदा होता है। दोनों होठों उसके मुकाबिल ऊपर के कान हाँ, से सूखे हिस्से से मीम अदा होता है। मीम अदा होता है। दोनों होठों के खुश्क खुश्क को सूखे को ही खुश्क वो कहते हैं ना। दोनों होठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है क्या? मीम। हम्म। हाँ, बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि हम मखरज, जो हुर्फों के मखरज हैं, वो सही तरीके से याद करें और उसी मखरज वाले तरीके से हम हुर्फों को अदा करें, तो इंशाल्लाह आपको एग्जाम में कुछ परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हम मखरज के साथ हुर्फों को, लफ्जों को, सूरा को याद करेंगे ना, तो हम आराम से बता पाएंगे उनके सवालों के जवाब, है ना। जी अपी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ये हमारी फीजी भी है। जी जी हाँ। हाँ, तो इसमें या आ रहा है, तो उस हुर्फ का मखरज क्या है? या जुबान की तालू की जुबान के नोक को तालू के ऊपर हिस्से में उसके लगाने मुकाबले से उसके या तालु अदा से होता है। अदा होता है। और जिम का भी यही मखरज है। हम्म। जुबान की नोक और क्या है? ऊपर की तालू पानी के बीच का हिस्सा और उसके मुकाबिल ऊपर के तालु से जीम, वो या और जीम अदा होते हैं। और शीन भी अदा होता है अपनी। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी तैयारी कर रहे हैं। बस इसी तरह एग्जाम तक हमें वक्त देना है और फिर अच्छी तरह से एग्जाम देना है ना। ये हमारी सूरह हो गई। इसमें से आप अगर चाहें तो 1-2 आयत बीच में से कोई सी भी, जिन आयतों में मुश्किल लफ्ज हैं, उन आयतों को पढ़कर डाल सकते हैं ना। और जो हुर्फे आप वो आसानी से अदा कर लेंगे, लेकिन जो जैसे सोया सुला है, हम्मालतल हतब है, और हब्लुम मिन मसद है, तब्बत यदा व तब कसब, इस तरह के हुर्फ थोड़े से लेके उसको डालें, है ना। अब हम आगे बढ़े क्या? अपी ऐसा जी कर लेंगे, जो आज की जो क्लास में जो पढ़ाया आपने वो होमवर्क आज ही डाल देंगे, और जो कल नहीं नहीं, पढ़ाएंगे वो आज कल डाल देंगे। बात सुने, आज नहीं डालें, क्योंकि आज और कल में बिल्कुल वक्त नहीं होगा। आपको जो टाइम दिए ना, बुध जी और जुमेरात को डालें आप। बुध के दिन एक दिन का डाल दें, जुमेरात के दिन दूसरे दिन का डाल दें, तो मैं दोनों चेक कर लूंगी इंशाल्लाह। जी ठीक है, इसे डाल देंगे। बीच के जो आपके वक्त बचेंगे, जो दिन बचेंगे, उसमें आप डिस्कशन करिए आप एक दूसरे से कि मैंने जी ये डाला है, देखिए आप लोग कोई भी नाम नहीं ले किसी का भी, जी जी और आप पढ़कर डाल दें। और कोई भी ये नहीं कि कोई पाबंदी के जिनको अच्छा आता है वही चेक करें, जिनको जितना भी आता है वो चेक करके बताएं, उससे भी आपकी गलतियां सही होंगी। जी अगर जितना भी आता है जिसको भी वो चेक करें, अगर वो गलत बताएगा तो कोई बात नहीं, हम हैं उसको ठीक कर देंगे, और उसमें कोई घबराने वाली शर्माने वाली बात नहीं है ना। चेक करें, उससे भी जी आपको अपी कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। जी
कोई भी एक दूसरे का कोई भी डाल दें, कोई भी चेक कर लें। ये ग्रुप इसीलिए बना है कि आपकी आसानी रहे हर चीज में। चलिए जी अब अपी हम, इंशाल्लाह आज थोड़ा वक्त निकालेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये आगे वाली सूरा पे हम आते हैं। कौन सी सूरा पे? कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। सूरह इखलास। अखलास, सूरह सूरह इखलास। इखलास। सूरह इखलास। हाँ, इखलास की ये सूरह लहब पढ़ी है हमने। अब हम आएंगे सूरह इखलास पे। तो इसमें सबसे पहला ही हुर्फ है ना जिनको निकालने में मुश्किल होती है। कुल कुल। कुल हाँ, कुल तो ये इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। कुल। हाँ, कुल हुवल्लाहु अहद। कुल 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 हुवल्लाहु अहद। अहद। कुल नहीं कहना हमें, कुल 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 हुवल्लाहु। कुल हु वल। कुल हुवल्लाहु अहद। हाँ, अब इसमें देखें आप, ये जो मैंने आयत पढ़ाई है इसमें कौन कौन सी हाँ आ रही है? अब इसमें छोटी एक भी आ जगह रही है, छोटी बड़ी हाँ आ भी रही आ है और रही एक जगह बड़ी हाँ आ रही है। अहद में हाँ बड़ी हाँ आ रही है, होवा में छोटी हाँ आ रही है। जी जी माशाल्लाह। तो अब इसके मखरज तो आपको पता ही है कि छोटी हा का मखरज कौन सा है और बड़ी हा का मखरज कौन सा है ना? जी और क्या आ रहा है इसमें? एक और जो हमजा है, जो हमजा, उसका भी मखरज याद हा है? का जो हा। अपी अलिफ का अलिफ नहीं, हमजा। अलिफ पर एराब लगी है हमजा। हाँ हमजा, इसका ध्यान रखना कि जी अगर उन्होंने कह दिए इसमें, ये जो मैं लफ्ज बता रहा हूँ अहद, इसमें जो इसमें हुर्फ आ रहा है हमजा, अब आप सोचते रहेंगे इसमें तो हमजा है ही नहीं, है नहीं, ना? अपी अलिफ पे एराब लगी है तो वही हमजा कहलाएगा। हाँ, तो हमजा का भी मखरज हा याद का रखना मखरज है। है, वही हमजा का मखरज। जी, जो छोटी हा का मखरज है वही हमजा का भी मखरज है। हमजा हलक के आखिरी सीने की तरफ वाले हिस्से से अदा होता है। हाँ, अल्लाहु समद, हुस्समद, अल्लाहु समद। हुस्समद। हुस्समद। स्वाद का मखरज पता है? जबान के नोक ऊपर नीचे के दोनों किनारे से फिर स्वाद आ जाता है। जुबान की नोक और ऊपर नीचे के चारों दांतों के किनारे से स्वाद आता है। जुबान की नोक को, जुबान ऊपर की नोक नीचे को के चारों दांतों के ऊपर किनारे नीचे में के चारों लगाने से दांतों के स्वाद अदा किनारे में होता है। लगाने से स्वाद अदा होता है। बिल्कुल माशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ। हम्म, माशाल्लाह। काफी हद तक याद है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। इंशाल्लाह आपको एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। जी अपी इंशाल्लाह। लम यलिद लम लम यलिद यलिद वलम यूलद। वलम लम यूलद। यूलद। अच्छा, वाव का मखरज बताएं। अपी दोनों 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 होठों को होठों के अधूरे मिलने से पूरक वाव होने अदा पर होता है। वाव अदा होता है। बोल माशाल्लाह। जैसे हम या वाव पेश यू पढ़ेंगे, यो नहीं पढ़ेंगे, या वाव पेश यू, है ना? जी या वाव पेश यू, तो वाव यू की आवाज आ रही है ना, यू। जी जी। यूलद यूलद। वलम यकुल लहू। वलम वलम यकुन। यकुल लहू। काफ का मखरज क्या है? वलम यकुन लहू। अपनी काय का पूछ छोटी रही हैं? अपी कहेगा काफ का, काफ, काफ। जुबान की जड़ के छोटा शुरुआती काफ। हिस्से जुबान की को जड़ के तालू शुरुआती में हिस्से ऊपर को के ऊपर के तालू में तालू के लगाने नरम सख्त हिस्से में हिस्से में लगाने से लगाने से काफ काफ पैदा अदा होता होता है। है। सख्त हिस्से में लगाने से, तालू के सख्त हिस्से में लगाने सख्त से। हिस्से जी जी। अपी इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हो गए। हाँ, जुबान सुन की रही जड़ हूँ मैं। के शुरुआती हिस्से को ऊपर के तालू के सख्त हिस्से में लगाने से काफ
काफ अदा होता है, का छोटी जुबान की जड़ को उसके ऊपर मुकाबिल ऊपर के तालू तालु के सख्त हिस्से में लगाने से हाँ कफ कफ काफ अदा होता है, काफ। कफ हाँ और कौफ उस जबान की जड़ को ऊपर के तालू के नरम हिस्से में लगाने से काफ अदा होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा अच्छी प्रैक्टिस चल रही है आप लोगों की। और कुछ भी ऐसी चीज हो कि आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो हम हैं, सवाल करें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम मिलकर, अपन सब मिलकर कि वो कमियां पूरी हो जाएं, खत्म, है ना। जी। जी अपी इंशाल्लाह। वलम यकुल लहू वलम यकुल लहू कुफुवन वलम यकुल अहद लहू कुफुवन कुफुवन अहद कुफुवन अहद। कुफुवन कुफुवन अहद। ये अच्छा, इसमें इस पूरी सूरा में कोई सा हुर्फ बहुत ही मुश्किल बस ये हो सकता है स्वमद, ये थोड़ा सा मुश्किल थोड़ा सा है, समद। बाकी सब आसान है ना। जी हाँ, और जिनको जो लोग ऐसे हैं कि जैसे बहुत से लोगों को शीन और सीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, किसी को कौफ और काफ में होती है, क्योंकि अभी जो सबक चेक करे हैं उसमें थोड़ी और थोड़ी इन चीजों की प्रॉब्लम आ रही है कि कॉफ को कहीं बहुत अच्छा कहा है काफ, और कहीं उसको कॉफ काफ को कॉफ कहा है पढ़ा है, और कहीं काफ को अ निकल गया है। तो थोड़ी सी हमें इन चीजों पे ध्यान रखना है। वैसे तो पढ़ने का कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आप जो याद करेंगे वही आप मखरज बताएंगे। अगर आपको कुल पूछ लिया, आप कुल पढ़ रहे हैं उससे, तो आप कुल काफ का बताएंगे मखरज, है ना। अगर आप कुल को कुल ही पढ़ेंगे तो आप उस हिसाब से मखरज, लाम उसमें काफ और लाम है तो काफ का भी बताएं और लाम का भी बताएं, ऐसा ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। तो आपको जो हुर्फ है उसको उसी मखरज के हिसाब से याद करना है ना। जी। हाँ, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ, पता नहीं वो मैं कह पा रही हूँ कि नहीं, और आपके समझ में आ रही है या नहीं। आ तो रहे हैं। कोशिश, हाँ आ रहे हैं जी, जज़ाकल्लाह आ रहे। तो इंशाल्लाह अभी तो हमारी और क्लासेस हैं, इंशाल्लाह जो लोग भी ऐसे हैं कि थोड़े कंफ्यूज हैं कि भाई हम नहीं पढ़ पाए हैं, तो परेशान ना हो, अभी हमारे पास वक्त है, हम मेहनत कोशिश कर सकते हैं, रोज के हिसाब से थोड़ा सा वक्त निकाल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और ग्रुप पे भी डिस्कशन कर सकते हैं, सबक के जरिए डाल के भी हम थोड़ी सी कमियां पूरी कर सकते हैं। तो जो जितना कर सकता है वो ये इतने टाइम में कर ले, एग्जाम से पहले पहले, है ना। जी। और अगर हमारे लिए कोई है बात तो वो हमसे भी बताएं। ठीक है, चलिए हम अटेंडेंस ले लें जल्दी से। जी। जी अपी। चलिए, रहमत नूर साहिबा। जी लब्बैक। हाँ, आपका तो एग्जाम के लिए नाम आ ही गया है। युसरा खान नहीं है। अमरीन मतीन साहिबा, लब्बैक। आप सबक नहीं डाल रही, क्या बात है। हम तो बाहर गए हुए थे, कल ही वापस आए हैं और थोड़ा तबीयत भी गड़बड़ हो गई थी तो इस वजह से। चलिए खैर, अब इंशाल्लाह आगे डालिएगा, है ना। जी। आफरीन अजहर, आफरीन जी अपी साहिब, लब्बैक। हाँ, और अशरा साहिबा, अशरा मंसूरी। अशरा साहिबा मौजूद हैं, क्या बात है, थी तो वो नहीं मौजूद है अशरा साहिबा। और सदफ खान ये तो है ही नहीं। और हुमेरा सैयद, हुमेरा साहिबा, क्या बात है, आज इनकी आवाज नहीं आई। हुमेरा साहिबा मौजूद नहीं है। एब्सेंट है आज शायद। हाँ, वो बहुत कम रहती हैं एब्सेंट, मगर पता नहीं, मैंने मैसेज नहीं देखे शायद। चलिए, और गुलनाज साहिबा, सब्बा फातिमा,
रुकैया साहिबा मंसूरी, रुकैया मंसूरी, रुकैया साहिबा मौजूद है? लब्बैक अपी। जी। और अमरीन हकीम, अमरीन साहिबा, तबस्सुम साहिबा, तबस्सुम साहिबा, तबस्सुम साहिबा, एग्जाम के लिए नाम दिया है आपने लेकिन क्लासेस नहीं लेंगी तो परेशानी होगी। तबस्सुम साहिबा। रुबीना अशफाक, रुबीना साहिबा, जी अपी रुबीना लब्बैक। जी। अनीसा बी, अनीसा साहिबा, अनीसा साहिबा लब्बैक। जी। नाजिश हसन, नाजिश साहिबा, देखिए मुझको ये देना है अटेंडेंस और सबक की अटेंडेंस देना है आप लोगों की। अगर ऐसे ही रहा, इशरत मंसूरी, इशरत साहिबा, तो बहुत लब्बैक गड़बड़ अपी। हो जाएगी। जी। अपी अशरा रुखसार की भी साहिबा, लगा दीजिएगा, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। क्या लगा दूं? आई नहीं थी क्लास में हाँ। तो लीव लगा दूं? नहीं, प्रेजेंट लगा दीजिए अपी। प्रेजेंट थोड़ी लगेगी क्लास में नहीं है तो। अगर उनका मैसेज मतलब आया है आपके जरिए से तो हाँ, उनकी उन्हें लीव किया था। लग, जी हाँ जी। तो वो मौजूद नहीं है तो फिर लीव लगेगी उनकी, है ना? ठीक महनाज है। साहिबा, महनाज साहिबा, महनाज साहिबा, पे मौजूद हैं। हाँ जी हैं, उनका माइक खुला जी। मैं प्रेजेंट लगा रही हूँ उनकी। और बाकी जो नहीं आते हैं, रुखसार सिद्दीकी, साइमा बेगम, नूरैन पठान, सना खान, फसीहा साहिबा, ये इनकी तो एब्सेंट लगी हुई है। और जूही खान, जूही साहिबा लब्बैक अपी। जी। नबीहा खान, नबीहा खान, ये तो हफ्ते इतने दिनों में एक आध बार ही चेहरा दिखा के वापस गायब हो गई हैं। दो एक क्लास ली है इन्होंने। शहाना खान, शहाना खान, गुफराना खान, गुफराना साहिबा जी अपी लब्बैक। जी। और आपने सबक आवाज नहीं आ गई? डाला हेलो, कौन बैलेंस में हासिल कर पाऊँ? जी। निशात अली, निशात अली, निशात साहिबा नहीं मौजूद, निशात साहिबा जी। और अर्शी साहिबा जी अपी लब्बैक। लब्बैक। जी। जी जी। इनाया साहिबा, इनाया साहिबा, उरूज जीशान, उरूज साहिबा, उरूज साहिबा, उरूज साहिबा थी तो कहाँ चली गई, गायब हो अपी गई? इसकी पहले वाली स्लाइड लगा दीजिए। एक सेकंड, कौन सी ये? जी जी। उरूज साहिबा थी, अभी नाम लिखवाया था उन्होंने इसके लिए। मुस्कान खान, मुस्कान साहिबा, आफरीन आसिम, आफरीन आसिम, अपी फाकिहा, फाक अपी इनका तो जी। नाम ही हटा दिएगा, आफरीन आसिम का। अच्छा, जी, वो उन्होंने बस एक ही सही क्लास ली, उसके है, एक बाद ही वो नहीं ले क्लास रहे। की, सही है हाँ। फाकिहा साहिबा, एग्जाम के लिए इन्होंने नाम दिया है लेकिन अटेंडेंस नहीं है इनकी, तो काफी लोगों के नंबर इसी में कम हो जाएंगे अगर अटेंडेंस नहीं है और सबक भी नहीं है। तमन्ना मंसूरी, तमन्ना साहिबा, तमन्ना साहिबा, सफिया इख्तिदार, सफिया साहिबा जी लब्बैक। जी। साबिरीन, साबिरीन साहिबा, और आफरीन लतीफ साहिबा जी लब्बैक, जी लब्बैक। जी। और सुमेरा असलम, जी अपी सुमेरा लब्बैक। साहिब जी। अपी ये जो आप उरूज साहिब है ना, ये भी प्रेजेंट है।
हाँ उरूज साहिबा ने नाम लिखवाए थे एग्जाम के लिए अपने, तो मैंने उनको लगाई फरहीन खान। से खतीजा जीशान के नाम से। हाँ खतीजा जीशान के नाम से जी। तो फरहीन खान नहीं है, और साइना साहिबा, रुबीना मंसूरी, रुबीना साहिबा, नूरीन खान, नूरीन साहिबा नहीं है, नाजिया खान। ये एग्जाम देने का है इरादा और क्लासेस अटेंड नहीं हो रही हैं, तो कैसे चलेगा साथ। चलिए खैर, हमारा जो काम है हम वो उतना ही कर सकते हैं, बाकी चलिए अब हम दुआ पढ़ लें, हो गया वक्त। जी बाकी इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। 2 सूरह बची है हमारी, सूरह फलक और सूरह नास, है ना। जी तो हम इंशाल्लाह कल करते हैं मुकम्मल इसको। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो क्या आप बिस्मिल्लाह पढ़ें तो उसमें लाम को बिल्कुल हमें लफ्ज़ अल्लाह को बिल्कुल मोटा, उसके लाम को मोटा नहीं पढ़ना है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ऐसे नहीं करना है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इन्नका वतुब अलैना वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नका सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।